हेलो एवरीवन। जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का नया टॉपिक गामा रेडियोग्राफी टेस्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग का ही एक पार्ट है जिसके तहत जैसे एक्सरे टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते थे उसी तरीके गामा रे रेडियोग्राफी टेस्टिंग के ऊपर परफॉर्मेंस होगा। लेट्स स्टार्ट। दैट इज अ गामा रे रेडियोग्राफी टेस्टिंग। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग में हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करते हैं। वी नो दैट द एज पर द spectrum of electromagnetic two types wavelength is very short wavelength, two types of rays, that is x-rays और gamma ray। हम लोगों ने देखा कि एक्सरे is produced with the help of X-ray tube. The high volt one is the cathode and another is the anode, and the electron strike the target and then produce the heat and the beam also. And this X-ray is used to the radiography inspection or testing. In a gamma ray, सब कुछ सेम है, बस अंतर है यहां पे एक्सरे की जगह हम गामा रे को यूज करेंगे। सो पहला क्वेश्चन मेरा गया, हाउ टू प्रोड्यूस दी गामा रेस। गामा रे इज आल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and having the short wavelength and penetration ability is more. It is emitted from unstable nucleus. What is a unstable nucleus? बेसिक में हम लोग चलते हैं। हम लोग को मालूम है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज द स्मॉल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड आउटर साइड इज कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज and neutron neutral and the proton is positive charge as per the Rutherford. When if the nucleus is balanced, the force among the particle that make up the nucleus balance is called the stable nucleus. If the force among the particle unbalance the nucleus is called the unstable nucleus. So unstable nucleus mean the force among the particle is unbalanced. So that the gamma ray are electromagnetic radiation and emitted from the unstable nucleus, and with unstable nucleus emit radiation with sufficient intensity and required for inspection of material. The electron goes from a higher level and after it return from the lower level, then it emits the radiation. So that's why radiation is known as the gamma ray. And what is the isotopes? Isotopes are two or more types of atom that have the same atomic number, same atomic number of proton in there in the atom. So that's why the number of the proton in their atom and position in periodic table. So that's why the gamma ray are similar to X-ray. Gamma ray are similar to X-ray, except they are emitted from unstable nucleus of the atom. And the जो gamma ray है और X-ray है वो similar है, लेकिन बस इसमें इतना अंतर है कि gamma rays जो है आपका प्रोड्यूस हो रहा है with the help of the unstable nucleus, और unstable nucleus क्या है कि the nucleus is consisting of the many particles and the force among that particle is not balanced. That type of the nucleus is known as unstable nucleus. And the X-ray is produced on the gamma X-ray tubes. When gamma ray consists discrete wavelength and much shorter than X-ray. X-ray से इसके क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, so that the penetration ability और ज्यादा अच्छी है इसकी। Energy level of gamma ray remain constant for particular isotopes. Different types of the isotopes are used. हम लोग बहुत तरह के isotopes यहाँ पे यूज करते हैं for the producing gamma rays for unstable nucleus. Basically we used cobalt 60, हम लोग cobalt 60, iridium 192, थैलियम 170 को यूज करते हैं, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उनकी हाफ लाइफ क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ is the radioactive, the interval of time required for half of the atomic number of radioactive to decay.
वो टाइम रिक्वायर्ड जिसमें रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव इज डिके हाफ, दैट लाइफ हियर इज नोन एज द हाफ लाइफ. सो दैट द मीन रेडियोग्राफी टेस्टिंग में हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली ये सोर्स या तो आइदर उस तरह का सोर्स यूज करना है जिसकी वेवलेंथ कम हो और पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा हो. तो हम लोग दो तरह की वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए या तो हम एक्सरे यूज करें या हम गामा रे यूज करें. सो एक्सरे का हमें जो बेसिकली फंक्शन पता चला कि एक्सरे इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब्स एंड द गामा इज जनरेटेड फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस. हाउ दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म? टेस्टिंग इज परफॉर्म, दे कंसिस्ट ऑफ द कंटेनर. एक कंटेनर होता है जिसके अंदर एक सोर्स जो गामा रे को प्रोड्यूस करेगा, और उसी में एक कैमरे को रखेंगे, और वो सोर्स कब वो गामा रे को प्रोड्यूस करेगा और कब नहीं प्रोड्यूस करेगा, इस अरेंजमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम एक प्रकार की मैकेनिज्म यूज करते हैं. दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज क्रैंक आउट मैकेनिज्म. विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, दैट इज द फिगर, ये फिगर देखिए, this is the arrangement of the gamma rays. This is called a gamma ray source, and that source is particularly designed with the one of the type of mechanism is known as crank out mechanism. ये अभी इसको पर्टिकुलरली देखेंगे ये कैसे बनता है. सो दिस कंटेनर, ये ऑल ओवर इज नोन एज द कंटेनर. ये पूरा पूरा क्या है? कंटेनर है. एंड दिस कंटेनर इज सिलेंड्रिकल फॉर्म and made of the basically it is made of the aluminum or steel or alloy of magnesium. And second one is that the camera is also placed on that particular one end of the source. यहाँ पे क्या करें, एक source camera is designed in a such way, इसको इस तरह से डिजाइन कर देंगे there is no leakage of the radiation. इस पूरे कंटेनर में, और जहां पे सोर्स को रखेंगे इस तरह डिजाइन करिए कि वहां से लीकेज कोई ना हो पाए. सो दैट्स व्हाई कंटेनर एक डिजाइन किया. कंटेनर के अंदर हमने सोर्स रखा एंड द कैमरा इज प्लेस्ड, एंड कैमरा बेसिकली इज अ प्लेटिंग ऑफ इज यूजली मेड ऑफ लेड और डिप्लेटेड यूरेनियम. जो कैमरा हम लोग यूज करेंगे, दो सोर्स के साथ यूज कर रहे हैं, वो मेड ऑफ लेड और यूरेनियम का यूज करेंगे. एंड कैमरे का फंक्शन ये है कि कब हमें एक्सप्लोजिव डिवाइस को, मतलब गामा रेस को कब हमें लोड करना है और कब अनलोड करना है, कब हमें उस पे कॉलिमुलेटर पे जाके एक्स रेस को जनरेट करना है और कब अनजनरेट नहीं करना है, ये कैमरे का फंक्शन होगा. सो ये कैसे वर्किंग करेगा? ये लोडिंग और अनलोडिंग विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म नोन एज क्रैंक आउट मैकेनिज्म. इसके तहत क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड द जनरेटर एंड दिस इज सोर्स वॉल्व, एंड द बैक साइड इज नोन एज द camera is placed and it is made of the lead source holder. And the function of the camera is that particular it is called a crank and the guided tube. ये एक crank है और यहाँ पे guided tube है, and it is one end of is connected to the drive cable and other is ended to the source. जब हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि ये हमारा स्पेसिमेन है जिसपे हमें डिफेक्ट करेक्ट करना हो, दिस इज कॉल्ड द फिल्म. ये हमारा फिल्म है और कैस्केड सपोर्ट के पीछे रखा हुआ है. तो जब हमें फिल्म इसके ऊपर फिल्म हमारी जाएंगी और एब्जॉर्प्शन के साथ कहां पे, वहां पे हमारा ब्राइट स्पॉट बन जाएगा फिल्म के ऊपर, जिस तरह से एक्सरे में था हमारा जनरेट करने का कि जहां पे हमारा डिफेक्ट नहीं होगा तो वहां ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, जहां पे हमारा ब्राइट सिल्वर AGBR की हम लोग कोटिंग करते हैं उसके ऊपर. सो ये जब रेस कैसे जनरेट करेगा, ये रेस विद द हेल्प ऑफ कैमरा करेगा. और कैमरा किस मैकेनिज्म पे वर्क करेगा? क्रैंक आउट मैकेनिज्म पे वर्क करेगा. इसमें क्या होगा, जब मुझे एक्सप्लोजन करना होगा तो उस समय क्या करेगा रेडियोग्राफर, क्विकली क्रैंक वो टू मेक द एक्सपोजर, हमें एक्सपोजर करना है वो एक्सप्लोजिव डिवाइस, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसके अंदर क्या है गामा सोर्सेज रखा हुआ है. ये एक्सप्लोजिव डिवाइस से वो निकलेगा एंड क्रैंक क्विकली द क्रैंक विद द हेल्प ऑफ द क्रैंक ये क्या करेगा, इसको निकालेगा एंड आउट ऑफ द एक्सपोजर डिवाइस एंड द पोजीशन इनटू द कॉलिमुलेटर. और ये तुरंत कहां जाएगा? कॉलिमुलेटर पे जाएगा. यहां पे दिस इज कॉल्ड द कॉलिमुलेटर. यहां पे आपका कॉलिमुलेटर पे ये सोर्स इंपिंग्स हो जाएगा एंड एक्सरेज स्टार्ट टू फोकसिंग ऑन द स्पेसिमेन.
वहां पे जब मुझे ये आफ्टर एक्सप्लोजन इज कंप्लीट, जैसे ही वो वहां पे एक्सप्लोजन कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे लाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, द सोर्स इज क्रैंक आउट बैक, सोर्स